how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is Introduction to Adobe Animate CC. Let's get started. Name these famous cartoon movies using words given in the help box. All these movies have made use of Adobe Animate software in one way or the other. Help box: Ratatouille, Bolt, Robin Hood, Kung Fu Panda. Students, you might have seen the animated movies. Have you thought how they created? They are created by using Adobe Animate software. In earlier days, creating an animation movie was a very tedious process. The use of computers and animation software has made the process of creation of an animation movie simple and less time consuming. In this chapter, we will discuss about an animation software called Adobe Animate CC. बच्चों यहाँ पे आपको कुछ फेमस जो कार्टून कैरेक्टर्स हैं, जो मूवीज़ हैं, उनके आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, पिक्चर्स दी गई हैं. ठीक है, आपको हेल्प बॉक्स से उनका नाम ढूंढना है और दिए गए स्पेस में आपको लिखना है. साथ ही साथ आपको ये सोचना है कि जो एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं वो किस तरह से बनाई जाती हैं. तो ये जो एनिमेटेड मूवीज़ होती हैं वो किसी एनिमेटेड सॉफ्टवेयर में ही बनाई जाती हैं. पहले के ज़माने में जो एनिमेशन मूवी होती थी उसे बनाना बहुत ही मुश्किल टास्क होता था, लेकिन कंप्यूटर के आने के बाद ये टास्क जो है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, ईजी होता जा रहा है. ठीक है, इस चैप्टर में हम जानेंगे एक एनिमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जिसका नाम है Adobe Animate CC. Adobe Animate CC. Adobe Animate CC is a software package that allows the users to create interactive animations. Using this software, one can combine images, audio, video and other effects, create animations. Originally, it was designed to create animations to be displayed on web pages. Animate is now commonly used to create games, cartoons, websites, photos, galleries and much more. The animation and graphics created in Animate CC can be scaled to any size without compromising on the or quality. तो बच्चों, Adobe Animate CC जो है वो आपका एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसमें आपके क्रिएटिव इंटरैक्टिव एनिमेशन को क्या किया जाता है, बनाया जाता है. ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आपके इमेजेस के कॉम्बिनेशन को, ऑडियो, वीडियो और दूसरे इफ़ेक्ट्स को एक साथ ला करके एक एनिमेशन क्रिएट किया जाता है. ठीक है, मोर टू नो, फ्लैश ओरिजिनेटेड विद द एप्लीकेशन स्मार्ट स्केच डेवलप्ड बाय जोनाथन गे. तो बच्चों, ये आपका फ्लैश है जिसे कि ओरिजिनेट किया गया था विद द एप्लीकेशन स्मार्ट स्केच. ये डेवलप किया गया था जोनाथन गे के द्वारा. Future Wave added vector drawing capabilities and released Future Splash. Macromedia acquired Future Splash and released Flash, combining Future and Splash. Macromedia was purchased by the software giant Adobe in 2005 and is therefore currently being developed and distributed by it. Since February 8, 2016, Flash Professional CC has been renamed Adobe Animate CC. तो बच्चों, Adobe Animate CC जो है इसका पहला जो नाम था वो Flash Professional कहा जाता था या Future Flash इस नाम से इन्हें पहले बुलाया जाता था. Starting Adobe Animate CC. To start the Adobe Animate CC, perform the following steps. Step 1. Click on the Start button on the taskbar. The Start menu appears. Step 2. Click on the Adobe Animate CC 2018 program. The welcome screen of the Adobe Animate CC 2018 will open. Step 3. In the welcome screen, under Create New option, click on Action Script 3.0. A blank document opens in the Animate with the specified dimensions. तो बच्चों, हम जान लेते हैं कैसे हम Adobe Animate CC जो है उसे स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है. ठीक है, जो कि आपके टास्क बार में आपको नज़र आ रहा होता है. ठीक है, उसके बाद आपको क्लिक करना है Adobe Animate CC 2018 प्रोग्राम पे. आपके सामने वेलकम स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी. ठीक है, उसके बाद वेलकम स्क्रीन में आपको क्रिएट न्यू पे जाना है और आपको क्लिक करना है एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 पे. एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी जिसमें आपको स्पेसिफाइड डायमेंशंस जो है वो नज़र आएंगे. Components of Adobe Animate CC window.
The Animate program window has a number of components with which you must familiarize yourself before working on graphics and movies. Menu bar. The menu bar contains controls for common functions and commands such as opening and saving files, etc. Stage. The stage is the main work area that is used while creating a project. It is a rectangular area where any graphics placed will be visible and accessible to the user for working on it. Default width and height of the stage is 550 into 400 pixels. Timeline. The timeline is a panel at the bottom of the stage. It is divided into frames. It consists of divisions of frames arranged on a number. It contains the sequence of images in frames which make the animation. Work area. The light grey area surrounding the stage is called work area. You can place objects here until you want them to appear on the stage. Tool panels. The tool panels contains a number of tools that help us to create and or modify graphics and text. The following table represent a snapshot of the tools panels and the respective tools available in Animate CC. तो बच्चों हम एनिमेट सीसी के बारे में जान लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो होते हैं वो हमें दिखाई देते हैं जब हम एनिमेट सीसी जो है वो ओपन करते हैं। सबसे पहला इसमें आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार जो होता है ये आपके कंट्रोल को कंटेन कर रखता है जो आपके कॉमन फंक्शंस या फिर कमांड्स के होते हैं, जैसे कि आपकी ओपनिंग एंड सेविंग फाइल। इसके बाद स्टेज आता है। स्टेज जो होता है वो आपका मेन वर्क एरिया होता है जहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट को क्या करते हो, क्रिएट करते हो। ये एक रेक्टेंगुलर एरिया होता है जहाँ पे आपके ग्राफिक्स को प्लेस किया जाता है, ठीक है, और उन्हें विजिबल एंड एक्सेसिबल बनाया जाता है ताकि हम जो है उस पर काम कर सके। टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या होती है? टाइमलाइन एक पैनल होता है एट द बॉटम ऑफ द स्टेज, मतलब स्टेज के नीचे ही ये टाइमलाइन होती है और ये 2 फ्रेम्स में डिवाइडेड होती है, ठीक है। इसमें आपके डिवीजन ऑफ फ्रेम्स जो होते हैं वो अरेंज किए जाते हैं नंबर की फॉर्म में और आपके इमेजेस के सीक्वेंस को भी ये क्या करता है, दर्शाता है। वर्क एरिया, ये एक लाइट ग्रे एरिया होता है जिसके आसपास आपका स्टेज होता है, ठीक है, जिसे हम वर्क एरिया कहते हैं और इसमें आपके ऑब्जेक्ट्स को क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, ठीक है, जब तक कि वो स्टेज पे अपीयर नहीं हो जाते। टूल पैनल्स जो होते हैं ये आपके नंबर ऑफ टूल्स जो होते हैं कंटेन करते हैं जो कि आपको क्रिएट करने में, मॉडिफाई करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं अपने ग्राफिक्स या फिर टेक्स्ट को। अब यहाँ पे हमें टेबल की फॉर्म में दर्शाया गया है कि कैसे हमारे टूल पैनल्स जो है वो दिखते हैं या काम करते हैं। सो चिल्ड्रन लेट्स हैव अ लुक एट दिस टेबल। टूल नेम, फंक्शन, selection selects objects on the stage. An object must be selected before it can be modified. Subselection selects objects or part of objects by dragging a rectangular selection mark. Modifies specific anchor points in a line or curve. Free transform move, scales, rotates, skews or distorts objects. Lasso selects objects or parts of objects by dragging a free form selection mark. Pen draws lines or curves by creating a series of dots that are automatically connected. Text creates and edits text. Line draws straight lines, strokes of varying lengths, width and colors. Rectangle draws rectangles of different size and colors. Press and hold shift key to draw a perfect square. Oval draws oval shapes. Press and hold shift key to draw a perfect circle. Pencil draws free hand lines and shapes. Brush draws paints with brush like strokes. Ink bottle applies color, thickness and styles to lines. Paint bucket fills enclosed area of a drawing with color. Eyedropper picks up styles of existing lines, fills and text and apply them to other objects. Eraser erases a line and fills. Hand moves the view of the stage and work area. Zoom increases or reduces the view of the stage and work area. तो बच्चों हम जान लेते हैं इन टूल्स के बारे में। सबसे पहला सिलेक्शन टूल है, ये आपके ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। जब भी आप किसी
इमेज को, किसी ऑब्जेक्ट को आप मॉडिफाई करते हो तो उससे पहले आपको उसको सिलेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। उसके बाद आता है आपका सब सिलेक्शन। ये भी आपके ऑब्जेक्ट को या किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, लेकिन इसे ड्रैग किया जाता है रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्क के द्वारा। इसके बाद आता है फ्री ट्रांसफॉर्म। ये आपके ऑब्जेक्ट को स्क्यू, मूव, स्केल, रोटेट करने के लिए हेल्प किया जाता है। लेसो जो होता है ये आपके ऑब्जेक्ट के किसी भी पार्ट को या आपके ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए फ्री हैंड ड्राइंग के साथ इसे आप क्या कर सकते हो, मतलब सेलेक्ट कर सकते हो। पेन जो होता है ये आपके लाइंस एंड कर्व्स को क्या करता है, ड्रॉ करता है, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्स्ट। ये आपके टेक्स्ट को क्रिएट एंड एडिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइंस जो होती है ये आपके लाइंस, जो भी आप अपने ऑब्जेक्ट के साथ कोई लाइन ड्रॉ करना चाहते हो तो उसके लिए इसे यूज़ किया जाता है। रेक्टेंगल जो होता है ये आपके बॉक्स में या आपका जो एरिया होता है वहाँ पे आपको अगर रेक्टेंगल कोई भी शेप आपको टाइप करनी है या वहाँ पे आपको दर्शानी है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ओवल भी आप यूज़ कर सकते हो डिफरेंट शेप्स को दर्शाने के लिए, जैसे कि सर्कल होता है, ओवल होता है, ये आप इसके थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं। पेंसिल जो होता है ये आपका फ्री हैंड लाइन एंड शेप्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रश जो होता है ये आपके ब्रश लाइक स्ट्रोक्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इंक बॉटल जो होता है ये आपके कलर्स, थिकनेस एंड स्टाइल्स ऑफ लाइन को अप्लाई करने के लिए यूज़ किया जाता है। पेंट बकेट जो होता है ये आपके किसी भी इंक्लोज्ड एरिया में अगर आपको कलर फिल करना है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। आई ड्रॉपर जो होता है ये किसी भी स्टाइल को पिक करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इरेजर जो होता है ये आपकी लाइंस एंड फिल्स को इरेज करने के लिए यूज़ किया जाता है। हैंड जो आपका टूल होता है ये आपके स्टेज का जो व्यू होता है उसे मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। एंड जूम का मतलब आपको पता ही है, आप अपने ऑब्जेक्ट की साइज़ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो इसके साथ। थिंक बॉक्स। नेम एनी सॉफ्टवेयर अदर देन एनिमेट CC यूज्ड फॉर एनिमेशन। बच्चों ये आपको सोचना है, पता लगाना है कि एनिमेट CC के बाद कोई और भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे आप एनिमेशन क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। टेक टिप। To open any tool, you can use the shortcut key shown in parentheses in the tool tip that appears when you place the mouse over a tool for a few seconds. बच्चों अगर आपको पता करना है किसी भी टूल का शॉर्टकट की क्या हो सकती है तो आपको सिंपली अपना माउस जो है वो उस टूल के ऊपर लेके जाना है, थोड़ी देर के लिए आपको वहीं रखना है, आपको उसका जो शॉर्टकट की है वो अपने आप वहाँ पे विजिबल होने लगेगा। प्रॉपर्टीज पैनल। This panel displays the different properties of the object which is selected. It is also called property inspector. If the property inspector is not visible by default, you can open it by clicking on window properties option from the menu bar or by pressing the control plus F3 keys. तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ पैनल जो होते हैं ये आपके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, सेलेक्ट करते हो, ठीक है। अगर आपके प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर जो है आपको विजिबल नहीं होते बाय डिफ़ॉल्ट तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, विंडोज़ में क्लिक कर सकते हो, उसके बाद आप प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन पे जा सकते हैं और मेन्यू बार से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या सिंपली आप कंट्रोल प्लस F3 जो की है वो भी अपने कीबोर्ड पे प्रेस कर सकते हैं। लाइब्रेरी पैनल। The library panel contains the objects that are either created or imported. These objects in the library panel can either be reused in the project or exported to another project. लाइब्रेरी पैनल में आपके क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आपने पहले ही क्रिएट किए होते हैं या उन्हें इंपोर्ट किया हुआ होता है, मतलब ये पहले से ही क्रिएटेड एंड इंपोर्टेड होते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके लाइब्रेरी पैनल में इन्हें आप रीयूज़ कर सकते हैं, मतलब बार बार इन्हें क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं और इन्हें साथ के साथ दूसरे प्रोजेक्ट्स में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। नाउ कंपोनेंट्स ऑफ एनिमेट टाइमलाइन। The animate timeline is located below the stage. It contains frames, layers and scenes that make up a movie. You can use the timeline to organize and control your movies. Layers are a representation of depth in workspace, while frames are a representation of time. Frames can be used for building an animation over time. तो बच्चों एनिमेट टाइमलाइन के हम कंपोनेंट्स जान लेते हैं। एनिमेट टाइमलाइन जो होती है वो आपके स्टेज के जस्ट बिलो ही होता है और इसमें आपके फ्रेम्स, लेयर्स एंड सीन्स जो होते हैं वो होते हैं जिनको आप अपनी मूवी को बनाने में क्या करते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, ठीक है। इनको आप टाइमलाइन के थ्रू यूज़ कर सकते हो ताकि आप अपनी मूवी को ऑर्गेनाइज या फिर उसे कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। जो लेयर्स होती है किसी भी रिप्रेजेंटेशन में उसकी क्या होती है, वर्क स्पेस की डेप्थ को ये क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। जब भी आप अपनी
रिप्रेजेंटेशन में फ्रेम्स को क्या करते हो, अप्लाई करते हो। और फ्रेम्स जो होते हैं वो आपके एनिमेशन में एज ए बिल्डिंग का काम करते हैं ओवर टाइम। Layers are used to organize the artwork in your animate document. You can have numerous layers stacked on top of another. Newer layers are listed first. Each layer can contain a different image that appears on the stage, and you can draw and edit objects on one layer without affecting the objects on another layer. अब लेयर जो होती है वो आपके आर्ट वर्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ की जाती है आपके एनिमेट डॉक्यूमेंट में। ठीक है, आप काफ़ी सारी लेयर्स को अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हो या फिर आप उन्हें एक के ऊपर एक क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यू लेयर्स को सबसे ऊपर रखा जाता है, ठीक है, और हर लेयर जो होती है उसमें डिफरेंट इमेजेस को क्रिएट किया जाता है या उन्हें रखा जाता है। Add remove layer buttons. Above the layer there are buttons for adding and deleting layers. Frames are the little rectangles on the timeline. They enables you to control what appears in animation sequence. Length of time in an animation is divided into two frames. Frame indicator, frame number. Frame indicator indicates the selected frame number, the current frame rate, how many frames play per second, and the time that has elapsed so far in the movie. Frame numbers. Frames appears in a chronological order in the timeline and each frame has a number. Playhead. The playhead, also called the current frame indicator, marks the current frame displayed on the stage. Timeline buttons. These buttons contains play, stop, start and end, loop, on, off and onion skin, which are used for controlling frames, layers and movies. तो बच्चों हम फ्रेम्स के बारे में जान लेते हैं, कैसे हम फ्रेम्स को यूज़ करते हैं। फ्रेम्स जो होते हैं वो आपके रेक्टेंगुलर फॉर्म होते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में होते हैं किसी भी टाइम लाइन में, ठीक है। इन्हें आप कंट्रोल कर सकते हो अपनी जो एनिमेशन सीक्वेंस है उसे परफॉर्म करने के लिए या उसे दिखाने के लिए। अब ये जो आपकी लेंथ होती है किसी भी एनिमेशन की, उसकी जो टाइम होती है वो 2 फ्रेम्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका फ्रेम इंडिकेटर एंड दूसरा होता है आपका फ्रेम नंबर। फ्रेम इंडिकेटर्स जो होते हैं ये आपके फ्रेम नंबर्स, जो आपके सेलेक्टेड फ्रेम नंबर्स होते हैं उन्हें इंडिकेट करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी जो करंट फ्रेम है उसके बाद जो आपकी बाद वाली फ्रेम है, मतलब आपके जो फ्रेम है उसके टाइम को भी ये दर्शाते हैं कि कितने टाइम के लिए कोई फ्रेम जो है वो आपकी मूवी में रहता है। तो बच्चों नेक्स्ट आता है आपका फ्रेम नंबर्स। ये जो फ्रेम नंबर्स होते हैं ये आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स में होते हैं किसी भी टाइमलाइन में, और हर फ्रेम का इसमें क्या होता है, अपना एक नंबर होता है। इसके बाद प्ले हेड आ जाता है, ठीक है, जिसे हम करंट फ्रेम इंडिकेटर भी कहते हैं। ये आपके फ्रेम का किस तरह से वो डिस्प्ले होता है स्टेज में उसे ये मार्क करके दर्शाता है। उसके बाद आते हैं आपके टाइमलाइन बटन्स, ठीक है। इसमें आपके प्ले, स्टॉप, एंड ऑफ, लूप, इस तरह से आपके बटन्स होते हैं जिन्हें आप जब आपका एनिमेशन प्ले हो रहा होता है तो उसमें आप इन्हें यूज़ कर सकते हो। यूजिंग द Adobe Animate CC tools. Every graphic project in Animate CC starts with a shape. Each shape in Animate has 2 components. Fill, the inside of the shape. Stroke, the outline of the shape. Animate considered stroke and fill as separate objects and thus allows you to select, move or modify them separately. अब कैसे हम इन टूल्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। जो आपके ग्राफिक्स प्रोजेक्ट होते हैं किसी भी एनिमेट सीसी में वो शेप के साथ ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। हर शेप जो होती है वो आपके एनिमेट में 2 कंपोनेंट्स के साथ आती है। एक होता है आपका फिल जो कि आपके शेप के इनसाइड फिल किया जाता है, दूसरा होता है आपका स्ट्रोक जो कि आपके शेप की आउटलाइन को दर्शाता है, ठीक है। एनिमेट जो होता है स्ट्रोक एंड फिल को कंसीडर करता है एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये दोनों सेपरेटली जो है वो काम करते हैं किसी भी एनिमेट सीसी प्रोजेक्ट में। नेक्स्ट है ड्राइंग टूल्स। ड्राइंग टूल्स आर यूज्ड टू ड्रॉ वेरियस ऑब्जेक्ट्स। लेट अस लर्न अबाउट दीज टूल्स। लाइन टूल. The line tool helps us to draw straight lines. Follow the steps given below to use the line tool. Step 1. Click on the line tool to select it. Step 2. Select a stroke color from stroke, a thickness by moving the stroke slider, or a style from the style preset as per your requirement. Step 3. Position the mouse pointer on the stage area until mouse pointer changes to plus. Step 4.
click and drag to draw the arrow a line of desired length. Step 5, release the mouse button. A line will be drawn on stage. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम लाइन टूल को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्लिक करना है लाइन टूल पे ताकि आप उसे सेलेक्ट कर सको। उसके बाद आपको सेलेक्ट करना है स्ट्रोक कलर फ्रॉम द स्ट्रोक, ठीक है। उसकी थिकनेस को आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि कितनी थिकनेस वाली लाइन जो है वो आपको चाहिए। इसके लिए आपको स्ट्रोक स्लाइडर को मूव करना है, ठीक है। अगर आपको पतला चाहिए तो आप नीचे की तरफ जाएंगे, अगर आपको मोटा चाहिए तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप सेलेक्ट करेंगे स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल प्रीसेट, ठीक है, जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी। उसके बाद आपको माउस पॉइंटर को पोजीशन करना है ऑन द स्टेज एरिया जब तक कि आपका माउस जो है वो प्लस के साइन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। फिर आपको ड्रैग क्लिक करना है, ड्रैग करना है ताकि आप लाइंस को ड्रॉ कर सको। उसके बाद आपको माउस बटन को रिलीज करते रहें तो आप देखोगे आपकी जो लाइंस है वो आपके स्टेज पे ड्रॉ हो गई है। फैक्ट टू नो, टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन होल्ड द शिफ्ट की डाउन वाइल ड्रैगिंग द लाइन टूल अक्रॉस द स्टेज। अगर आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको अपनी जो शिफ्ट की है उसे आपको होल्ड करके रखना है। फिर आपको उसको क्या करना है, अपने जो एरो वाला बटन है उसको नीचे की तरफ लेके जाना है। आपकी जो लाइन है वो स्ट्रेट नीचे की तरफ या फिर आपके लेफ्ट टू राइट ड्रॉ हो जाएगी। Pencil tool. The pencil tool allows us to draw freehand lines just as we draw using a real pencil. When you select pencil tool, 3 possible modes will be displayed in options section of tools. Panel, straighten, smooth and ink. The steps to use the pencil tools are as follows. Step 1, select the pencil tool and a stroke color for the pencil outline. Step 2, choose a drawing mode under options in the toolbox or in the property panel. Choose straighten to adjust lines, shapes into interconnected straight lines of any length. Choose smooth to draw smooth curved lines. Choose ink to draw freehand lines with no modification required. Step 3, now in properties panel, select any of the different properties, stroke, color, style, thickness of pencil tool as per the requirement. Step 4, on the stage just click and drag the mouse to draw your shape. Step 5, release the mouse button to finish drawing. The required shape will be drawn. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम पेंसिल टूल से लाइन जो है वो ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस पैनल में आप देखोगे आपको 3 ऑप्शन नजर आएंगे जैसे कि स्ट्रेटन, स्मूथ एंड इंक। अब हम जान लेते हैं स्टेप्स के थ्रू कि कैसे हम पेंसिल टूल को यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको पेंसिल टूल को सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, और फिर आपको स्ट्रोक कलर को भी सेलेक्ट करना होगा। सपोज आप ग्रीन कलर की पेंसिल चाहते हो, ब्लैक कलर की नहीं चाहते या कोई और स्पेसिफाइड कलर चाहते हो तो आपको उस स्ट्रोक का कलर जो है वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको ड्राइंग मोड को चूज़ करना पड़ेगा अंडर ऑप्शंस इन द टूल बॉक्स जो कि आपके प्रॉपर्टी पैनल में नज़र आते हैं। उसके बाद आपको चूज़ करना है स्ट्रेटन को, ठीक है, ताकि आप अपनी लाइंस की जो शेप है उसे एडजस्ट कर सको इनटू इंटरकनेक्टेड स्ट्रेट लाइंस ऑफ एनी लेंथ। या फिर आपको चूज़ करना पड़ेगा स्मूथ टू ड्रॉ स्मूथ कर्व्ड लाइन, ठीक है। उसके बाद अगर आपको इंक चाहिए तो आपको इंक को चूज़ करना पड़ेगा ताकि आप फ्री हैंड लाइंस को क्या कर सको, सेलेक्ट कर सको विद नो मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। अब प्रॉपर्टी पैनल्स में आप जाएंगे, कोई भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे जैसे कि स्ट्रोक, कलर, स्टाइल, थिकनेस, ठीक है, जो भी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको पेंसिल टूल की चाहिए। उसके बाद आप स्टेज पे जस्ट क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और आप अपने माउस को ड्रैग करते हुए लेके जाएंगे कोई भी शेप को ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद आपके जब शेप बन जाएगी तो आपको अपना जो माउस बटन है उसे रिलीज कर देना है, ठीक है। तो आपकी जो रिक्वायर्ड शेप है वो आपके स्क्रीन पे क्या हो जाएगी, ड्रॉ हो जाएगी। Rectangle tool. This tool is used to create square and rectangular shapes. This tool has an option that can be set to draw a rounded rectangle. Follow the given steps. Step 1, click on the rectangle tool in the tools panel. Step 2, select properties like stroke, color, fill color, stroke size, style and scale from the property inspector. Step 3, drag the mouse pointer on the stage. You will see the shape drawn. Step 4, to draw a rounded rectangle, specify the corner radius under the rectangle option section in the property inspector. You can use the corner radius controlled slider to change the value of the corner.
तो बच्चों अगर हमें रेक्टेंगल टूल को यूज़ करना है, ठीक है, कभी कभी हमें ड्रॉ नहीं करना होता, हमें कोई शेप वहाँ पे दर्शानी होती है और स्पेसिफिकली अगर हमें रेक्टेंगल को दर्शाना है तो हमें कुछ स्टेप्स यहाँ पे दिए गए उन्हें हमें फॉलो करना होगा। सबसे पहले आप रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करेंगे जो कि आपको टूल्स पैनल में नज़र आएगा। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ को सेलेक्ट करना है, जैसे कि आपको अगर स्ट्रोक कलर चाहिए या उसमें कुछ कलर आपको फिल करना है, उसका साइज़ आपको दर्शाना है, स्टाइल, स्केल, तो वो आपको प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आप अपना माउस जो है वो ड्रैग करके कहाँ पे लेके आएंगे, स्टेज पे लेके आएंगे और आपको जो अपनी शेप है वो पे आपको स्टेज पे बनानी है, ठीक है। अगर आपको राउंड रेक्टेंगल बनाना है तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा कॉर्नर रेडियस को, जो कि आपको रेक्टेंगल ऑप्शन के नीचे नज़र आएंगे, ठीक है, इन द प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर। इसके थ्रू आप कॉर्नर रेडियस कंट्रोल स्लाइडर को भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपकी जो वैल्यू है कॉर्नर्स की वो आप चेंज कर सकें। थिंक बॉक्स, Is it possible to change the stroke, width, style and color of rectangle? तो बच्चों जब आप Adobe Animate पे काम कर रहे होते हो तो ये आप सोचना कि क्या आपके जो रेक्टेंगल है उसकी स्ट्रोक, विथ, स्टाइल एंड कलर को आप चेंज कर सकते हो। Polystar tool. You can draw simple shapes like polygon and star in Animate as a part of our drawing. To draw a polygon, follow the given steps. Step 1. Click on Polystar tool. The fill and stroke options are similar to the line tool and are adjusted the same way. Step 2. Click on option in the tool settings. Tool settings dialog box appears. Step 3. Select polygon from the style drop down menu. Step 4. Enter the value that ranges from 3 to 32 in the number of slides text box. Step 5. Click on OK. Step 6. Click and drag on the stage area to draw your polygon shape. The polygon appears according to your desired specifications. Similarly, you can draw a star by selecting star option in the tool setting dialog box. अब बच्चों हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करना जान लिया, अब हम जानते हैं कैसे हम पॉलीस्टार टूल को यूज़ करते हैं पॉलीगन को ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले आपको पॉलीस्टार टूल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको फिल एंड स्ट्रोक ऑप्शन पे जाना है जो कि सिमिलर ही होते हैं आपके लाइन टूल के ही अकॉर्डिंग, ठीक है। देन उसके बाद आपको ऑप्शंस पे क्लिक करना है जो कि आपको टूल सेटिंग्स पे नज़र आएगा। आपके सामने सेटिंग डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा। देन आपको पॉलीगन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है, ठीक है, इस स्टाइल ड्रॉप डाउन मेन्यू में से। फिर आपको वैल्यू को क्या करना है, एंटर करना है, जो कि रेंज करती है 3 to 32 इन द नंबर्स ऑफ स्लाइड्स टेक्स्ट बॉक्स। देन आप जब नंबर को एंटर कर लोगे, वैल्यू को एंटर कर लोगे, तो उसके बाद आपको ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। देन आपको क्लिक करना है अपने माउस से और ड्रैग करके लेके आना है स्टेज एरिया पे ताकि आप अपने पॉलीगन शेप को क्या कर सको, ड्रॉ कर सको, ठीक है। फिर आपका जब पॉलीगन है आपके स्क्रीन पे अपीयर हो जाएगा डिज़ायर्ड स्पेसिफिकेशन के साथ। इसी तरह से आप स्टार को भी ड्रॉ कर सकते हो स्टार ऑप्शन को सेलेक्ट करके, ठीक है। ब्रश टूल, द ब्रश टूल इज यूज टू पेंट विद ब्रश लाइक स्ट्रोक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. You can use this tool to draw shapes in the same way as you use the pencil tool. The only difference between the two is that the brush tool is used to paint fills while the pencil tool is used to draw strokes. Paint normal allows you to paint over lines and fills. Paint fills allows you to fill an empty area leaving a line unaffected. Paint behinds allows you to paint blank area of the stage leaving lines and fills unaffected. Paint selection applies a new fill color only to the selected filled areas. Paint inside allows you to paint only the fill areas and never allows to paint outside the line. अब बच्चों ब्रश टूल का कैसे यूज़ होता है, ब्रश टूल जो होता है वो यूज़ किया जाता है पेंट करने के लिए ताकि ब्रश जैसा जो स्ट्रोक है वो आपकी पेंटिंग में आ सके, किसी भी ऑब्जेक्ट में आप उसे ला सको। आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो किसी भी शेप को ड्रॉ करने के लिए जैसे कि आप पेंसिल टूल को यूज़ करते हो, ठीक है। सिर्फ इनके बीच में डिफरेंस ये है कि आपका जो ब्रश टूल होता है वो आपके पेंट फिल को यूज़ करने के लिए, फिल करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि आपका जो पेंसिल टूल है वो आपके लाइंस को, आपके स्ट्रोक्स को ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें जो पेंट नॉर्मल होता है ये आपको पेंट अलाउ करता है पेंट करने के लिए ओवर लाइंस एंड फिल्स।
पेंट फिल जो होता है ये आपको अलाउ करता है किसी भी एम्प्टी एरिया में कलर फिल करने के लिए। पेंट बिहाइंड ये आपको अलाउ करता है ताकि आप स्टेज के किसी भी एरिया में जो पेंट है उसे फिल कर सके, उसमें कोई भी लाइन आपको पीछे नहीं छोड़नी। पेंट सिलेक्शन जो होता है ये आप अप्लाई करते हो अ न्यू कलर, ठीक है, जिसमें आपके सेलेक्टेड एरियाज में आप क्या करते हो, उन्हें फिल करते हो या उन्हें दर्शाते हो। पेंट इनसाइड जो होता है किसी भी शेप के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर आप इसे पेंट भरने के लिए यूज़ करते हो। The steps to use the brush tool are as follows. Step 1. Select the brush tool from the tools panel and then select the fill color for the brush. Step 2. Select the brush size and brush shape from the tools panel. Step 3. Drag the brush on the stage to draw the required figure object. अब बच्चों यहाँ पे स्टेप वाइज हम समझ लेते हैं कैसे हम ब्रश टूल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको ब्रश टूल को सेलेक्ट करना है टूल पैनल्स में से, देन आपको फिल कलर को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द ब्रश। उसके बाद आप ब्रश के साइज़ को भी सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको मोटा ब्रश चाहिए, पतला ब्रश चाहिए, तो आपको यहाँ पे आपको ब्रश का साइज़ सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ये आप टूल पैनल्स में से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आप अपना ब्रश जो है स्टेज पे लेके आओगे, ठीक है, उसे ड्रैग करके आप अपनी फिगर्स को, ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉ करोगे। Paint bucket tool. You can use the paint bucket tool to quickly fill in objects. You can fill objects with the color, a gradient effect, or even a picture. Follow the given steps to use the paint bucket tool by adding fill color. Step 1. Click on paint bucket tool. Step 2. Click on fill color. Step 3. Select the color from the swatches. You can also click on the fill color in the properties inspector and select the color. Step 4. Click inside the shape you want to fill. Animate fills your shape with the selected color. तो बच्चों हम जान लेते हैं पेंट बकेट टूल के बारे में, ठीक है। सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर दिया, अब आपको उसके अंदर कलर फिल करना है, तो आपको पेंट बकेट टूल से ही क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट में कलर फिल करना पड़ेगा। अब ये हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम स्टेप्स के थ्रू इन्हें जान लेते हैं। सबसे पहले आपको पेंट बकेट टूल पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको फिल कलर पे क्लिक करना है, देन आपको सेलेक्ट करना है स्वैचेस से कि आप कौन सा कलर फिल करना चाहते हैं, ठीक है। आप फिल कलर पे भी क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, जो कि आपको प्रॉपर्टीज़ इंस्पेक्टर पे नज़र आता है। उसके बाद आप कलर को चूज़ करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, देन आप शेप के इनसाइड लेके जाएंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आप कलर को फिल करना चाहते हैं, ठीक है। जो वो एनिमेट है या जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका रिक्वायर्ड आपने कलर चूज़ किया था, उसके अकॉर्डिंग वो कलर जो है उसके अंदर फिल हो जाएगा। Eraser tool. The eraser tool is used for erasing anything that is drawn on the stage. Follow the given steps to use the eraser tool. Step 1. Click to select the eraser tool. Step 2. Click on the eraser mode button and select a required eraser mode from the drop down menu. Erase normal erases all line and fills wherever the eraser is moved. Erase fills erases only the fill colors while lines are unaffected. Erase lines erase the strokes only. Erase selected fills helps in erasing a selected part of an object. Erase inside erases the inner part of an object. Step 3. Click on the eraser shape button and select a required eraser shape and size. Step 4. Drag the eraser tool over the drawing to erase a required part. अब बच्चों हम जान लेते हैं इरेजर टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इरेजर टूल के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है। किसी भी लाइन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को इरेज करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इरेजर टूल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद जो इरेजर मोड बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। अब इनमें से जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, अपने हिसाब से आप इनमें से जो मोड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इरेज नॉर्मल जो होता है ये आपकी लाइंस एंड फिल्स को इरेज करता है, ठीक है। इरेज फिल जो होता है ये आपके फिल जो आपने कलर फिल किया है किसी भी ऑब्जेक्ट में, अगर आप उसे इरेज करना चाहते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इरेज लाइन जो होते हैं ये आपके स्ट्रोक्स को इरेज करने के लिए हेल्प करता है या यूज़ किया जाता है। इरेज सेलेक्टेड फिल जो होते हैं ये आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के सेलेक्टेड पार्ट को, ठीक है। अगर आपको सपोज पूरा जो कलर है उसे इरेज नहीं करना, कुछ सेलेक्टेड पार्ट है, सपोज ईयर है, नोज़ है, उसे आपको इरेज करना है, तो आप उसे इरेज सेलेक्टेड फिल से इरेज कर सकते हैं। इरेज इनसाइड जो होता है ये आपके ऑब्जेक्ट के इनर पार्ट में जितना भी कलर होता है उसे इरेज करने के लिए हेल्प किया जाता है, ठीक है। नाउ इरेजर
शेप में आप क्लिक करेंगे, ठीक है, उसमें से आप जो इरेजर की शेप है उसका जो साइज़ है आप उसको सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा कोई ऑब्जेक्ट है उसे इरेज करना है तो आप ज़्यादा बड़ा इरेजर करेंगे, अगर आपको छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट इरेज करना है तो आप छोटा इरेजर का साइज़ जो है वो सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको ड्रैग करके लेके आना है अपने इरेजर टूल को, जो भी आप क्या करना चाहते हैं, इरेज करना चाहते हैं। Now text tool. Using text tool you can add text to a movie or a drawing. There are two types of text you can add to your drawing: label text and block text. The difference between these two is that when you type text into a label text box, text does not wrap. The width of the text box keeps expanding as you type characters. With a block text box, you specify a width, and when the text you are typing reaches the end of the block, it wraps the start a new line. Add label text box. Step 1, click on label tool or press T. Step 2, move your mouse pointer on stage and click on it. A text box appears on the stage. Step 3, type the text you want to appear on stage. A circle in the upper right corner of the text box indicates that it is a text label. To edit the text, double click on the text box. Add block text box. Step 1, click on text tool or press T. Step 2, move your mouse pointer over the stage. Then click and drag from left to right on the stage. A box appears on the stage showing you how wide your text box will be. Step 3, release the mouse. Step 4, type the text you want to appear on stage. A square in the upper right corner of the text box indicates that it is a block text box. अब बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम अपने एनिमेट में टेक्स्ट टूल को यूज़ करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट टूल आप यूज़ करते हो अपने एनिमेट अपने बॉक्स के साथ या अपने पिक्चर्स में, मूवीज़ में किसी भी टेक्स्ट को ऐड करने के लिए। ठीक है, ये आपके ड्राइंग में लेबल टेक्स्ट या ब्लॉक टेक्स्ट के थ्रू ही आप क्या कर पाते हो, इसमें टाइप कर पाते हो। ठीक है, इसमें आप इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ये डिफरेंस है कि एक जो होता है आपके टेक्स्ट को लेबल करने के लिए यूज़ किया जाता है और दूसरा जो होता है आपके टेक्स्ट को रैप करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम जान लेते हैं कैसे हम लेबल टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करते हैं। सबसे पहले आपको क्लिक करना है टेक्स्ट टूल पे या फिर आपको प्रेस करना है सिंपली टी को। ठीक है, उसके बाद आपको माउस पॉइंटर को अपने स्टेज पे मूव करना है और वहाँ पे क्या करना है, क्लिक करना है। आपके सामने टेक्स्ट बॉक्स जो है वो क्या हो जाएगा, स्टेज पे अपीयर हो जाएगा। जन जो भी आप टेक्स्ट वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, टाइप करना चाहते हैं, वो आप टाइप करेंगे और आपके स्टेज पे वो क्या होगा, अपीयर होगा। एक सर्कल इन द अपर राइट कॉर्नर पे आपको नज़र आएगा। ठीक है, और जो कि आपके टेक्स्ट लेबल को इंडिकेट कर रहा होगा। इसके बाद अगर आप टेक्स्ट को एडिट करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जान लेते हैं कैसे हम ब्लॉक टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, टेक्स्ट टूल पे क्लिक करना है या आपको प्रेस करना है टी को अपने कीबोर्ड पे। उसके बाद आप अपने माउस पॉइंटर को स्टेज पर लेके आएंगे। उसके बाद आप क्लिक करेंगे, ठीक है, और आप ड्रैग करेंगे लेफ़्ट टू राइट ऑन द स्टेज। आपके सामने बॉक्स जो है अपीयर हो जाएगा स्टेज पे, जो कि आपको क्या कर रहा होगा, विजिबल हो रहा होगा। तो बच्चों स्टेप 2 में आपको अपना माउस पॉइंटर जो है अपने स्टेज पे लेके जाना है। देन आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, और फिर उसको ड्रैग करना है लेफ्ट टू राइट ऑन द स्टेज। आपके सामने एक बॉक्स जो है वो स्टेज पे अपीयर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको वाइड शो कर रहा होगा, कितना वाइड आपका जो टेक्स्ट है वो उसके अंदर आएगा। देन आपको अपना माउस जो है वो रिलीज़ करना है। उसके बाद आपको टाइप करना है अपने टेक्स्ट को, जो भी आप अपने स्टेज पे अपीयर कराना चाहते हैं। एक स्क्वायर आपको विजिबल हो रहा होगा इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, जो कि इंडिकेट कर रहा होगा कि वो एक ब्लॉक टेक्स्ट बॉक्स है। मोर टू नो, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज पैनल यू कैन चेंज फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट एक्सेट्रा फॉर द टेक्स्ट। बच्चों आप प्रॉपर्टीज पैनल में से भी अपने फॉन्ट के साइज को, स्टाइल को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Converting text into graphics. You can convert your text into graphics by using the break apart command. After converting, you can use this graphic in animation. Animate uses 2 stages of breaking apart. The first time you use the break apart command, your text is split into editable single character blocks. The second time, your text becomes filled shapes. After that, you can no longer edit it with the text tool.
change the font or modify the formatting. Step 1, select the text you want to break apart. Step 2, click on modify menu. Step 3, click on break apart. Animate breaks the text into individual characters. Step 4, click on modify again. Step 5, click on break apart again. Animate converts the text into graphics. You can use this text as a graphic in animation, but you cannot edit it with the text tool. अब बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम अपने टेक्स्ट को ग्राफिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, आप अपने टेक्स्ट को ग्राफिक में कन्वर्ट कर सकते हो. उसके लिए सिंपली आपको ब्रेक अपार्ट जो कमांड है वो यूज़ करनी पड़ेगी. ठीक है, फिर आप जब कन्वर्ट कर लेते हो तो आप अपने एनिमेशन को ग्राफिक्स में भी दिखा सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के साथ. इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ेगा. आपको सबसे पहले वो जो टेक्स्ट है उसे सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसे आप ब्रेक अपार्ट करना चाहते हो. उसके बाद आप मॉडिफाई मेन्यू पे क्लिक करेंगे. देन आप ब्रेक अपार्ट पे क्लिक करेंगे. एनिमेट जो होगा वो आपके टेक्स्ट को इंडिविजुअल कैरेक्टर्स में क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा. ठीक है, उसके बाद आप मॉडिफाई अगेन पे क्लिक करेंगे. उसके बाद आप ब्रेक अपार्ट पे दोबारा से क्या करेंगे, क्लिक करेंगे. एनिमेट जो होगा वो आपके ग्राफिक्स को क्या कर देगा, आपके टेक्स्ट को ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर देगा. टेस्टिंग एन एनिमेट मूवी. You can test your animated movie at any time during design and development. Previewing your animation in the development phase helps check whether everything is going right or not. To test animation using test command, follow the given steps. Step 1, click on control in the menu bar. Step 2, click on test. You can also press control plus enter keys. You animate movie play in a test window. To text with publish preview, follow the given steps. Step 1, click on control in the menu bar. Step 2, click on test movie and then click the format you want to test. Your animate movie plays in the selected format. तो बच्चों हम जान लेते हैं कैसे हम अपनी एनिमेट मूवी को टेस्ट करते हैं. ठीक है, जब आप अपनी एनिमेट मूवी बना लेते हो तो आपको चेक करना भी ज़रूरी होता है कि ये किस तरह से जा रही है, किस तरह से ये प्ले हो रही है, किस तरह से ये दिख रही है. अब यहाँ पे हम जान लेते हैं कैसे हम टेस्ट कमांड को यूज़ करके एनिमेशन को चेक करते हैं. सबसे पहले आपको कंट्रोल पे क्लिक करना है जो कि आपको मेन्यू बार में नज़र आएगा. देन आपको टेस्ट पे क्लिक करना है. ठीक है, इसके लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर भी प्रेस कर सकते हैं अपने कीबोर्ड पे. आपकी जो मूवी है वो टेस्ट विंडो में प्ले हो जाएगी. अगर आप पब्लिश प्रीव्यू को टेक्स्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा. सबसे पहले आपको कंट्रोल पे क्लिक करना है जो कि आपको मेन्यू बार में ही नज़र आएगा. देन आपको टेस्ट मूवी पे क्लिक करना है. उसके बाद आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है जो भी आप टेस्ट करना चाहते हैं. आपकी जो एनिमेट मूवी है वो सिलेक्टेड फॉर्मेट में प्ले होने लगेगी. नाउ सेविंग द एनिमेट मूवी. As you create movies in Animate, you need to save them in order to see them again. The default extension for an Animate file is .fla. Animate does not save your work periodically, so it is essential to save early and often every time you make a significant change. बच्चों जब भी आप अपनी एनिमेट मूवी में चेंज करते हो तो इससे साथ के साथ आपको क्या कर लेना चाहिए, सेव कर लेना चाहिए. ठीक है, जब भी आप कोई एनिमेट मूवी क्रिएट करते हो तो आपको उसे सेव करना चाहिए. जैसे कि आप हर कोई काम अपने कंप्यूटर पे करते हो तो उसे आप क्या कर लेते हो, सेव कर लेते हो ताकि फ्यूचर में आप उसे दोबारा से ओपन कर सको. यहाँ पे जो आपकी एनिमेट फाइल होती है ये .fla एक्सटेंशन के साथ सेव होती है. ठीक है, तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसका रिविजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.